Hello friends, welcome back to my channel. In this session, we are quickly having a look at some basic numericals of not electrochemistry, solutions. So in solutions, we all know that solution is equal to solute plus solvent. Whenever we dissolve a particular solute in a particular solvent, what is being formed? Solution is being formed. तो अभी हमको बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन या परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू या नंबर ऑफ मोल्स बेसिक्स के लिए हमको क्या लेना पड़ता है? सोल्यूट और सॉल्वेंट की क्वांटिटीज लेनी पड़ती है. तो आपको ये कुछ यूनिवर्सल डिनोटेशन है जो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं कि whenever we are talking about the solute, okay, whenever we are talking about the solute, okay, we will use the subscript 2. Solute के लिए we are going to use the subscript 2. Say for example, weight of solute या weight of solute या mass of solute. Weight of solute या mass of solute को the representation, this is universal representation, okay, which will come in numericals, which will come in formulae. You should know this, that's why I'm making you write. Weight of solute is what? W2. Then molar mass of solute, molar mass of solute. What is molar mass of solute? Molar mass of solute is M2, again with the suffix 2. 2 is for solute, 2 जिधर भी आएगा that is for solute, 1 is for solvent. Okay, तो एक एक करके जाते हैं. Weight of solute W2, molar mass of solute M2. Then let's go for solvent. Solvent के लिए मैंने क्या बताया आपको? Solvent के लिए we are going to use the suffix 1. Like यहाँ पे weight of solvent, what is happening to this? हाँ, weight of solvent आप अभी तक गेस्ट कर चुके होंगे. व्हाट विल बी वेट ऑफ सॉल्वेंट? इट विल बी W1. व्हाट विल बी मोलार मास? अगर पूछते हैं तो मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट M1. ओके, फिर अगर कभी वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट पूछ लिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, व्हाट विल बी दैट? V1. ओके, तो जहां पर भी आपको सोल्यूट आता है तो वी यूज द सफिक्स सबस्क्रिप्ट 2, and whenever there is solvent we use the subscript 1. W1 M1 V1, W2 M2 for solute, and 1 for solvent. Sir, what if it is a solution? Then when there is solution, no subscript at all, no subscript at all for solution. Okay, like say for example mass of solution है, mass या weight of solution है, so weight of solution will simply be W, right, without any subscript. Then volume of solution, volume of solution के लिए the symbol of the representation will be only V. Okay, so W and V without any subscript, that is for solution. You need to note this down. This will be important when we solve some numericals. तो say for example अभी numericals के बाद में थोड़े से कुछ derivation type मतलब थोड़ा करेंगे, and then we'll get some formula, and after getting that formula we'll start solving these numericals. So say for example number of moles ले लेते हैं अभी for calculating. These are, you have to write along with me. So why are we doing all this? अभी न्यूमेरिकल स्टार्ट करना है ना, तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने के पहले ये प्री ट्रीटमेंट है, पूर्व तैयारी, before just preparation, just before solving the numericals. So now if I want to calculate number of moles, you have done this in your 11th standard also. Number of moles is equal to given mass upon molar mass. Given mass upon given mass of what? Solute. So given mass of solute is W2. Yeah, mass of solute, mind you, mass of solute divided by mass of solvent, mass of solute divided by mass of क्या बोल रहा हूं मैं, given mass of solute divided by molar mass of solute, given mass of solute divided by molar mass of solute. Okay, तो solute का लेंगे, that will be what? Number of moles. अगर एग्जाम्पल दिखाना है तो लाइक 90 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज इज हाउ मेनी मोल्स? 90 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज कितने मोल्स है? ग्लूकोज इज C6H12O6. तो पहले तो हमको M2 फाइंड आउट करना पड़ेगा. M2 मतलब मोलार मास इसका फाइंड आउट करना पड़ेगा. मोलार मास हम लोग 10th और 11th में सीख चुके हैं कैसे फाइंड आउट करना है, राइट? सो मोलार मास विल बी इक्वल टू 12 into 6 plus 1 into 12 plus 16 into 6. 12 6 जा 72, 1 12 जा 12, 16 6 जा कितना होता है? 16 6 जा 96, 16 5 जा 80, बराबर ना? या सो दिस total will come equal to 180 gram per mole. That's the molar mass of glucose. तो ग्लूकोज का M2 क्या रखेंगे? ग्लूकोज का M2 will be 180, राइट? और हमको क्या बोला है?
कि 90 gram of glucose is given to you. So for 90 gram of glucose, 90 will be the W2 mass or weight of the solute in grams divided by molar mass of solute. तो आंसर क्या आएगा? 0.5 moles. So we have found out the number of moles. सिंपल है ये, जो मतलब 10th के भी लेवल का नहीं, 10 से भी इजी है, मतलब सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ. वी गोइंग टू यूज नंबर ऑफ मोल्स समवेयर इन आवर फॉर्मूलाज, राइट? सो दैट्स व्हाई यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट नंबर ऑफ मोल्स W2 डिवाइडेड बाय M2. ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स हो गया. अब व्हाट वील डू इज नेक्स्ट वील गो फॉर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, राइट? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, अच्छा रुको, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन के पहले बेसिक बेसिक और ले लेते, फिर बॉइलिंग पॉइंट पे जाएंगे, राइट? परसेंटेज W बाय W. ओके, सुना होगा ना परसेंटेज W बाय W. ये अगर आपने बेसिक्स पढ़े हैं सॉल्यूशंस के, तो उसमें परसेंटेज W बाय W का फॉर्मूला भी आपने देखा होगा. व्हाट इज दैट परसेंटेज W बाय W? परसेंटेज W बाय W इज mass of solute divided by mass of solution, ओके, इनटू 100. अब आपको जो डिनोटेशंस दिए हैं उसके हिसाब से कैसा लिखोगे आप? डिनोटेशंस मास ऑफ सोल्यूट W2 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन. मास ऑफ सोल्यूशन मतलब W लिख सकता हूं मैं, बिकॉज दैट इज सोल्यूशन विदाउट एनी सबस्क्रिप्ट. या फिर सोल्यूशन इज सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट. तो सोल्यूट क्या है? W2 मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट. पता है ना? सोल्यूशन इज व्हाट? सोल्यूशन इज इक्वल टू, अभी तो बताया था 2 मिनट पहले, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज सोल्यूशन. तो सोल्यूट और सॉल्वेंट का ऐड कर दिया, W2 प्लस W1, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100. दिस इज योर परसेंटेज W बाय W का फॉर्मूला. देन वी आर हैविंग परसेंटेज V बाय V. परसेंटेज V बाय V में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इज V2. okay, volume of solute if it is a liquid, volume of solute divided by volume of solution. Volume of solution, solution is solute plus solvent, solute का volume, solvent का volume into 100. okay, so this is percentage V by V, right? So percentage W by V, percentage weight by volume, right? Percentage weight by volume will be W2, मतलब सोल्यूट को हमको वेट में लेना है और सोल्यूशन को ml में लेना है. ओके, सो W2 अपॉन W2 प्लस V1, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, मास ऑफ द सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट. इसको हमको टोटल, इसमें हमको क्या लेना पड़ेगा? इन द डिनोमिनेटर विल हैव टू टेक द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन डायरेक्टली, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लेंगे इनटू 100. सो दिस विल बी परसेंटेज W बाय V. ठीक है, फिर आगे चलते हैं. आगे मोल फ्रैक्शन करके एक कॉन्सेप्ट है हमको. मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय, मतलब इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स है. मोल फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय समथिंग लाइक दिस, काई या काई क्या कुछ तो बोलते हैं, CHI, राइट? सो दिस इज लाइक द symbol, okay, and we know that if there are two components, you can also write it as a x or call it as x plus x2 plus x3. अगर तीन components है, ठीक है, say for example मैंने वाटर में शुगर और सॉल्ट ऐड कर दिया, तो तीन कंपोनेंट हो गए, वाटर हो गया, शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया. सो वाटर, शुगर एंड सॉल्ट टुगेदर फॉर्म थ्री कंपोनेंट्स. तो थ्री कंपोनेंट्स के लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू 1. अगर दो ही कंपोनेंट्स है, शुगर एंड वाटर, सो x1 प्लस x2 शुड बी इक्वल टू 1. ओके, एंड मोल फ्रैक्शन क्या मैंने आपको सिखाया है. मोल फ्रैक्शन मैं अभी सिर्फ न्यूमेरिकल के हिसाब से, ये पूरा वीडियो न्यूमेरिकल्स के हिसाब से, ओनली वॉट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर न्यूमेरिकल्स. ये कॉन्सेप्ट इज ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन्ड. ओके, सो अब x1 का फॉर्मूला कैसा है? x1 का फॉर्मूला इज दैट इज मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट. अगर सोल्यूट का निकाल रहे तो x1 then n1 upon n1 plus n2, the total number of moles. If there are two components, then n1 plus n2. If there are three components, then n1 plus n2 plus n3. देन आप x2 निकालने जाओगे तो x2 में आपको क्या लेना पड़ेगा? यू हैव टू टेक n2 अपॉन द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज n1 प्लस n2. ओके, n1 प्लस n2. Again, so this is mole fraction of the second component, mole fraction of the first component, or in other words, mole fraction of the solute and mole fraction of the solvent. क्योंकि 2 हम लोग ने solute के लिए रखा है, 1 हम लोग ने solvent के लिए रखा है. As simple as that. Okay, और number of moles का formula starting में बता दिया. Number of moles is what? किधर गया वो? नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास W2 अपॉन M2. तो इसी फॉर्मूला को अगर नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे W2 अपॉन M2 लिखूंगा, चलेगा क्या? ऑफ कोर्स चलेगा. दिस वी कैन राइट W नंबर ऑफ मोल्स W2 अपॉन M2. दिस इज फॉर अगर सॉल्वेंट के लिए हम लोग ले रहे हैं, या इसके लिए लिखता हूं, आपको कंफ्यूजन होगा नहीं तो 2 और 1 में. ठीक है, तो इस कंपोनेंट के लिए N2 इज x2 अपॉन M2.
डिवाइडेड बाय, सॉरी क्या लिख दिया ये, W2 अपॉन M2 डिवाइडेड बाय W1 अपॉन M1 प्लस W2 अपॉन M2, राइट. सो दिस इज द इलाबोरेटेड फॉर्मूला फॉर मोल फ्रैक्शन. ठीक है. तो कभी कभी क्या हो जाता है, अब कुछ स्पेशल केसेस में द दिस कंपोनेंट इज वेरी लेस. से फॉर एग्जांपल लाइक 1 ग्राम ऑफ शुगर ऐड किया है, तो 1 ग्राम ऑफ शुगर इज 1 अपॉन मास ऑफ द W2, मतलब मास ऑफ द सोल्यूट कितना है 1 ग्राम. मोलार मास ऑफ शुगर, मोलार मास इज 342, सो 1/342 अपॉन 1/342 प्लस से फॉर एग्जाम्पल 90 ग्राम वाटर में ऐड किया है. 90 ग्राम वाटर इज, W2 is 90 gram and M2 of water, molar mass of water is 18. ओके. सो ऐसे केस में, ठीक है, ये हम लोग ने टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे ले लिए. अब 1/342 डिवाइडेड बाय 1/342 प्लस 19/18. तो अब अगर आप देखोगे कि इसकी जो वैल्यू है ये बहुत कम आने वाली है. ओके. तो थोड़ा इसको अगर रिजॉल्व करना है तो 1/342 डिवाइडेड बाय 1/342 इंटू 18 5 जा 90, करेक्ट, 18 5 जा 90. और 1/342 जरा कैलकुलेटर पे करके देखो तुरंत कितना आ रहा है. 1 बाय, मैं करूँ क्या कैलकुलेटर पे, आप कर रहे हो, 1/342 कितना आ रहा है, 0.0029. और इधर भी क्या आएगा 0.0029. इधर इंटू कैसे हो गया, ये प्लस है. ओके, +5. तो मैं इस नंबर को 5 से डिवाइड करूं या 5.0029 से डिवाइड करूं, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू. तो हम लोग इस वैल्यू को इग्नोर कर सकते हैं. वी कैन इग्नोर दिस. ओके, इन सम न्यूमेरिकल्स, नॉट इन ऑल, जिसमें ये बहुत छोटा वैल्यू आ रहा है, तो वी कैन इग्नोर दिस वैल्यू. तो सर इसको भी इग्नोर करो. अरे वो तो न्यूमरेटर, उसको कैसे इग्नोर करेंगे, उसको अगर 5 से डिवाइड करूंगा, मतलब इसको इग्नोर कर ही नहीं सकते, नहीं तो रखोगे क्या न्यूमरेटर में, और इसमें अगर डिवाइड करे तो आंसर सिग्निफिकेंट आएगा. बट ये इधर है या नहीं है, देयर वोंट बी मच चेंज इन द आंसर. दैट मींस इफ आई डिवाइड दिस वैल्यू बाय 5 और आई डिवाइडेड बाय 5.0029, it is not going to make much of a difference, so we can ignore this. So when I am ignoring this, so my formula can also change now. It will become W2 upon M2, this one numerator, divided by W2 अपॉन M2. ये W1 लेंगे हम लोग, बराबर ना. ये किसके लिए है, सोल्यूट के लिए. ठीक है, तो दिस इज फॉर सोल्यूट, आपको लिख के दे देता हूं. और सॉल्वेंट हम लोग लेंगे क्योंकि 5/19/18 किसका था, सॉल्वेंट का था. तो दैट इज W1 अपॉन M1. सो व्हेन आई सेंड दिस अप, राइट, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा. तो W2 इंटू M1 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1, ऐसा हो जाएगा. So this formula will become like this. When this value is a very small, number of moles of solute is very small, और मतलब अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने इस केस में ना W2 M2 यहाँ पे लिया है, W1 M1 यहाँ पे लिया है, सिर्फ पोजीशन इंटरचेंज हो गया और कुछ इंटरचेंज नहीं हुआ है. मतलब N2 अपॉन N2 प्लस N1 ऐसा लिया है. Does not make any difference. ओके, ये N1 प्लस N2 लू या N2 प्लस N1 लू, आंसर तो सेम ही आने वाला है. तो यहाँ पे मैंने सोल्यूट ले लिया, तो सोल्यूट ले लिया और यहाँ पे सॉल्वेंट ले लिया. ओके, सो सेम थिंग आई पुट अप ओवर हियर. वी हैव इग्नोर्ड दिस वैल्यू और दिस वैल्यू वी इग्नोर्ड, एंड वी हैव गॉट दिस फॉर्मूला. वी हैव चेंज्ड दिस फॉर्मूला टू दिस. सो दिस इज वन फॉर्मूला फॉर मोल फ्रैक्शन. क्या है ये, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला. फिर और थोड़ा देखते हैं आगे. वी आर हैविंग डेल्टा टीबी. डेल्टा टीबी इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आपने, you have studied now, where I've already shot the video and you have seen that video of boiling point elevation. अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, देख लो. डेल्टा टीबी is directly proportional to the molality, LITY, molality of the sugar or the solute which we are adding to the solvent, जिसकी वजह से उसका boiling point elevation हो रहा है. तो डेल्टा टीबी is also equal to T2 minus T1. या आपको अगर ग्राफ याद है तो we had drawn a graph like this. ओके, ये आपका यहाँ पे यहाँ पे क्या है, वेपर प्रेशर है, यहाँ पे टेम्परेचर है. सो दिस वाज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. व्हेन वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज द टाइम व्हेन द लिक्विड इज बॉइलिंग, है ना. तो व्हेन इट इज बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस इज द पॉइंट वेयर द लिक्विड इज बॉइलिंग. से फॉर एग्जांपल द लिक्विड इज वाटर एंड इट इज बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज टेम्परेचर हियर इज 100.
उसके बाद में आप बॉईल हो रहा था, बॉईल होते होते सडनली आपने शुगर डाल दिया, शुगर डाल दिया तो क्या हो गया, वेपर प्रेशर ड्रॉप हो गया। वेपर प्रेशर क्यों ड्रॉप हुआ, क्योंकि शुगर के मॉलिक्यूल्स वाटर के मॉलिक्यूल्स को पकड़ लेते हैं, स्टिकी बन जाता है ना वाटर, वाटर के मॉलिक्यूल्स को पकड़ लेते हैं, प्रिवेंट करते हैं वेपर फेज में गैसियस स्टेट में जाने के लिए, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम। और जैसे वेपर प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, क्या होगा, now this vapor pressure has dropped till here, boiling has stopped, temperature is not decreased, temperature is still 100, but the vapor pressure has dropped, because of which boiling is stopped, because boiling takes place only when vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure. This is the atmospheric pressure, okay, 760 mm of Ag. ओके सो फिर हम लोग ने छोड़ा नहीं, उसको हीट करना कंटिन्यू किया, यहां से आगे कंटिन्यू करते गए, हीट करते गए, बट दिस टाइम एट एन एलिवेटेड टेम्परेचर, से फॉर एग्जांपल 105 डिग्री सेल्सियस, हायर टेम्परेचर पे इसको हीट किया, so this becomes your T2, this is the elevation in boiling point, and this becomes your T1. ये सब एक्सप्लेन करके हो गया, दोबारा एक रिवाइज कर रहा हूँ, राइट, दिस इज T1, T1 is boiling point of the solvent only, pure solvent का boiling point, and this solution का boiling point, solution का boiling point is elevated at a higher temperature, higher temperature पे 105 final temperature T2, ये T1, तो इसका अगर T2 minus T1 करेंगे, यहाँ पे देखो T2 minus T1 करेंगे तो it will be 105 minus 100 which is 5 डिग्री सेल्सियस। सर अब वो केल्विन में वगैरह कन्वर्ट नहीं कर रहे क्या, फर्क नहीं पड़ता इन वाले न्यूमेरिकल्स में, न्यूमेरिक केल्विन में कन्वर्ट करो या नहीं करो, आंसर आपका सेम ही आएगा। मतलब इसको 105 को अगर आप केल्विन में कन्वर्ट भी कर देते तो 378 माइनस 373 केल्विन, राइट, 100 इज 373 केल्विन, तो अल्टीमेटली आंसर तो सेम ही आ रहा है आपका 5 इन दिस केस और इन दिस केस। ओके सो नो प्रॉब्लम इवन इफ यू डोंट कन्वर्ट इट इनटू केल्विन। सो अभी वापस आ जाओ, नाउ दिस डेल्टा टीबी दैट इज T2 minus T1 is dependent upon what, is dependent upon how much of solute you are adding. If I add more sugar, if I have added more sugar over here, vapor pressure will further drop at the same temperature, due to which you will have to heat more. When you have to heat more, the boiling point will increase, the boiling point will elevate further. But generally जो boiling point elevation होता है न्यूमेरिकल्स में, प्रैक्टिकली जो होता है वो बहुत कम elevate होता है, and for measuring this minute changes of changes in boiling point, like 101.2 हो गया, सिर्फ 1.2 बढ़ा क्या बॉइलिंग पॉइंट, तो ऐसे माइनर चेंजेस मेजर करने के लिए, छोटे चेंजेस मेजर करने के लिए नॉर्मल थर्मोमीटर ने एक स्पेशल थर्मोमीटर यूज करते हैं जिसका नाम है बेकमन थर्मोमीटर। व्हाट आर वी यूजिंग, बेकमन थर्मोमीटर, यूजिंग दिस थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, कितना एलिवेट हुआ, कितना ऊपर गया, स्लाइड चेंज होता है ना, तो स्लाइड चेंज के लिए एक सेंसिटिव थर्मोमीटर चाहिए, नॉर्मल थर्मोमीटर नहीं चलेगा। तो सेंसिटिव थर्मोमीटर का नाम क्या है, बेकमन थर्मोमीटर, विच मेजर्स इवन अ स्मॉलेस्ट चेंज इन टेम्परेचर, वेरी स्मॉल चेंज को भी मेजर कर लेगा। सो डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शुगर, जितना शुगर ऐड करोगे उतना बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन होगा। तो मोलालिटी ऑफ शुगर और मोलालिटी ऑफ द सोल्यूट इज नथिंग बट, मोलालिटी का फॉर्मूला पता है ना, मोलालिटी एंड मोलारिटी, पहले इसका प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा देते, दिस विल बिकम KBM, where KB is a constant, proportionality constant, it is called as ebullioscopic constant or boiling point elevation constant, right, ebullioscopic constant और boiling point elevation constant। ओके सो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू KBM। तो इसी फॉर्मूला को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वैसे मोलालिटी का आपको पता होगा फॉर्मूला, मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय number of moles by mass of solvent in kg, number of moles divided by mass of solvent in kg। अच्छा सर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो ये फॉर्मूला को, नंबर ऑफ मोल्स पहले ही लिख चुके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पहले ही कर चुके हम लोग, व्हाट इज दैट, W2 डिवाइडेड बाय M2, W2 डिवाइडेड बाय M2, मास ऑफ सॉल्वेंट इज W1 इन व्हाट kg, kg में है, उसको ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए विल डिवाइडेड बाय 1000। सो इस इक्वेशन को थोड़ा अच्छे से लिखते हैं तो विल राइट W2 डिवाइडेड बाय M2, these denominators will become common, इसका denominator will become common, that's why we'll write into W1, और denominator का denominator will go into the numerator, that is 1000, so W2 upon M2 into 1000 divided by W1 is the formula for molality, LITY, it is the formula for molality। तो यही जो फॉर्मूला है मोलालिटी का वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो, ये W1 is in grams, mind you everything is in grams, okay, because we have divided by 1000, क्योंकि kg में रहता है mass of solvent in kg, kg को grams में कन्वर्ट करने के लिए we divided by 1000, so we have divided by 1000, denominator का denominator has gone into the numerator। वैसे ही molality is represented by small m, small letter m, but molarity is measured, I mean represented by a capital M। So molarity is also similar but not the same, number of moles of solute divided by, please pay attention, volume of solution in liters, volume of solution in liters। यहाँ पे क्या था,
मास ऑफ सॉल्वेंट था, मोलालिटी LiTy में। यहाँ पे सॉल्वेंट नहीं है, सोल्यूट और सॉल्वेंट टुगेदर है, सोल्यूशन है, सोल्यूशन है, बट क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन नहीं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है। सो वही पुराना फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स W2 अपॉन M2, ओके, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, दैट इज V। ना वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर में तो ठीक है, लेकिन ml में है, तो उसको लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू डिवाइडेड बाय 1000। Okay, so when we divided by 1000, denominator का denominator numerator में चला जाएगा, what will be the final formula, W2 upon M2 into 1000 by V। सर इधर V में आपने कुछ लिखा क्यों नहीं, 1 2, क्योंकि सोल्यूशन है, सोल्यूशन के लिए कोई सबस्क्रिप्ट नहीं होता। सो 1000 by V, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैपिटल M, दैट इज मोलारिटी RiTy, मोलारिटी RiTy, मोलालिटी LiTy। ओके, सो अब ये इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट मैं इरेज कर देता हूं, और आप मेरे को बताओ कि डेल्टा टीबी, सब फॉर्मूले साथ में कर लेंगे ना इनिशियली, फिर न्यूमेरिकल स्मूथली चले जाएंगे, आपको इजीली आपको सॉल्व करने आ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं आएगा। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी एज इट इज रखूंगा। एम की जगह पे क्या लिख सकते हो, एम का फॉर्मूला, स्मॉल एम का फॉर्मूला क्या आया था हमको, स्मॉल एम का फॉर्मूला W2 अपॉन M2 इंटू 1000 बाय W1, यही पर आया था, किधर गया, हाँ, W2 upon M2 into 1000 by W1. This is the formula of molarity. Now, why are we doing all this? मैंने आपको पहले सेशन में बताया था कि सॉल्यूशंस में ये सब क्यों कर रहे हैं। 75% सोल्यूशन न्यूमेरिकल से भरा है, इतने सारे फॉर्मूले भी और भी है, आ रहे और क्यू में है। ओके, सो इतने सारे फॉर्मूले क्यों, 75% ऑफ द न्यूमेरिकल्स, आई मीन ऑफ सॉल्यूशंस इज बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स। मतलब से फॉर एग्जांपल अगर 10 मार्क्स है इस चैप्टर में, तो सिर्फ 2.5 मार्क का थियरी आने वाला है आपको, और 7 मार्क्स के न्यूमेरिकल, 7.5 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं। सो किसके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, थियरी के ऊपर है न्यूमेरिकल्स के ऊपर, तो ऑफकोर्स आंसर है न्यूमेरिकल्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। इसी के लिए ये वीडियो अलग से शूट कर रहा हूं, ताकि आपके न्यूमेरिकल का बेस स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू W2 डिवाइड बाय M2 इंटू 1000 बाय W1। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था फर्स्ट सेशन में कि ये सोल्यूशन हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये 100 साल पहले की बात है कि जब हमको मोलार मास फाइंड आउट करने के लिए कोई डिवाइस नहीं था। आजकल तो बहुत सारे डिवाइसेस है, लाइक वी कैन find out molar masses through a set of devices like spectroscopy, UV spectroscopy, IR spectroscopy, NMR, nuclear magnetic resonance, and ऐसे बहुत सारे advanced devices है जिसकी मदद से हम लोग को मोलार मास फाइंड आउट कर सकते हैं। मोलार मास ही क्यों, पूरा स्ट्रक्चर बना सकते हैं, स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर सकते हैं। See for example, neem है, neem in India, Azadirachta indica उसका biological name। तो this neem in India we have been using since ages as an antiviral medicine। बट उसमें एग्जैक्टली एंटीवायरल प्रॉपर्टीज किसकी है, कौन से कंपोनेंट की एंटीवायरल प्रॉपर्टीज है, तो उसमें मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन नीम। सो वी टेक नीम लीव्स एंड वी सेग्रीगेट, सेपरेट, आइसोलेट दैट कंपोनेंट व्हिच इज हैविंग एंटीवायरल एक्टिविटीज। अब उसका स्ट्रक्चर क्या है, अब उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, बेसिक इंफॉर्मेशन इज मॉलिक्यूलर वेट ना। तो वो मॉलिक्यूलर वेट कहां से मिल सकता है, एक तो ये पुराने टेक्निक्स से मिल सकता है। पुराने टेक्निक्स मतलब बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर, या फिर RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इन सब टेक्निक से हमको बॉइलिंग पॉइंट, इन सब टेक्निक से हमको मोलार मास मिल सकता है, या फिर नए टेक्निक से हम लोग भी फाइंड आउट कर सकते हैं अबाउट द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ दैट एंटीवायरल मॉलिक्यूल, एज वेल एज वी कैन फाइंड आउट द मोलार मास ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। फिर उसको लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। डायरेक्ट नीम की पत्तियां खाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट टैबलेट बना सकते हैं हम लोग नीम का। ओके, सो वी आर डूइंग ऑल दिस फॉर फाइंडिंग आउट मोलार मास। तो मोलार मास फाइंड आउट करने के लिए बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन मिल जाएगा, मोलार मास उधर भेज देंगे, M2 इज इक्वल टू KB divided by delta TB, KB divided by delta TB into W2 into 1000 divided by W1। Okay, this will be the formula। बस कुछ नहीं किया मैंने, M2 को इधर भेजा, डेल्टा TB को इधर लिख दिया, बस। that is the formula for what, molar mass, finding out molar mass with the help of what, with the help of boiling point elevation। ओके सर, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का कैसे करेंगे, सिमिलर है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन भी। डेल्टा TF विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ मोलालिटी ऑफ द सोल्यूट। तो वही सेम करना है आपको, डेल्टा TF प्रोपोर्शनलिटी साइन निकाल के इक्वालिटी साइन लेकर आना है। तो इक्वालिटी साइन लेकर आएंगे तो हमको एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा, KFM। ओके, सो दिस इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या है ये, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, राइट। वो इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट था, ये क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है। अब m की वैल्यू डाल दो, बस और कुछ नहीं। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इनटू W2 अपॉन M2 इनटू 1000 डिवाइडेड बाय W1। दिस विल बी फॉर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। मोलार मास उधर भेजो, डेल्टा TF इधर लेके आओ, एंड दैट्स हाउ यू विल फाइंड, यू विल सॉल्व न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। Okay, now
और एक लास्ट हम लोग ले लेते हैं, दैट इज रॉल्ड्स लॉ के न्यूमेरिकल, सब सारे फॉर्मूली, ये पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पहले फॉर्मूली इस चैप्टर, इस सेशन में, इस वीडियो में सारे फॉर्मूली रिकॉर्ड हो जाएंगे, सॉल्यूशंस के जितने भी फॉर्मूली उतने सारे, राइट। देन ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर पाई, एंड पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। मतलब कोई ऑस्मोटिक प्रेशर है ना, तो ऑस्मोटिक प्रेशर में ऑब्वियसली देयर इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और ये मॉलिक्यूल्स जितने इसके ऊपर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के ऊपर सोल्यूट मॉलिक्यूल्स बम्बार्ड करेंगे, क्योंकि सोल्यूट मॉलिक्यूल्स आर नॉट अलाउड टू गो ऑन द अदर साइड, तो इसकी वजह से दे विल कीप ऑन बम्बार्डिंग ऑन द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दिल जनरेट एन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो कितना ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होगा, जितने सोल्यूट मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा उतना ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होगा। दिस कॉन्सेंट्रेशन कैन बी मेजर्ड इन what? It can be measured in molarity, RITY. पहले boiling point elevation में, freezing point depression में we were taking molarity LITY. Now we are taking osmotic pressure में molarity RITY. अच्छा, simple सा question, which is more reliable, molarity LITY or molarity RITY? Which of the two is more reliable? So answer is molarity LITY is more reliable, क्योंकि आप देखोगे फॉर्मूला में we have over here molarity में mass of solvent in kg। सर तो क्या हुआ, तो हुआ ये कि टेम्परेचर चेंज होने पर भी मास चेंज नहीं होता, मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर डज नॉट चेंज विद चेंज इन व्हाट, सॉरी, मास डज नॉट चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर, राइट। वैसे ही लेकिन मोलारिटी में, RITY में, देयर इज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, वॉल्यूम विल चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर, राइट। 100 डिग्री सेल्सियस पे जितना वॉल्यूम है उतना 20 डिग्री सेल्सियस पे नहीं होगा। वाटर का वॉल्यूम अगर से फॉर एग्जांपल 1 ml है at 20 degree Celsius, तो at 100 degree Celsius obviously that 1 ml will expand. Why it will expand? Because with increase in temperature the volume will also expand. तो volume change होगा, increase in temperature के साथ में, तो molarity RITY भी change होगा। So molarity is not very reliable because it's dependent on temperature, but molarity LITY is very reliable because it is independent of temperature. So there are two expressions, the two expressions by which we are measuring concentration, that is molality LITY, molality and mole fraction. These two are temperature independent. These two are temperature independent, and molarity RITY is temperature dependent. It is what? Temperature डिपेंडेंट। तो अभी आगे करना है, आगे क्या करना है सर, ऑस्मोटिक प्रेशर में हमको ऐसा लिख सकता हूं मैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी कैपिटल M, ओके, RITY। देन अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दिया जाए तो we'll have to include some constant, that is R and T. What is R? R is the gas constant, T is the temperature. These will remain constant and molarity will be equal to MRT, basically dependent upon the concentration multiplied by the gas constant and the temperature. Because temperature बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल ज्यादा वाइब्रेट होंगे, तो ज्यादा बम्बार्ड होंगे, किसके ऊपर ज्यादा बम्बार्ड होंगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के ऊपर, और उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। सो ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू पाई इज इक्वल टू MRT। अब M की जगह पे फॉर्मूला लिखो, बताओ भाई फॉर्मूला, W2 अपॉन M2 इंटू 1000 बाई V इंटू R इंटू T is what? Osmotic pressure. This is another formula for osmotic pressure, right? Then let's move on to RLVP. ओके, RLVP के लिए थोड़ा रॉल्ड्स लॉ का भी हमको करना पड़ेगा, टोटल वेपर प्रेशर, पी टोटल, ये भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, इसका डेरिवेशन भी एक्सप्लेन किया है, बट सब न्यूमेरिकल्स एक साथ, सॉरी, सब फॉर्मूले एक साथ ले रहे हैं तो इधर बता रहा हूँ। पी टोटल इज इक्वल टू the vapor pressure of the first component multiplied by its mole fraction plus vapor pressure of second component multiplied by its mole fraction. मतलब P total is equal to, अगर से फॉर एग्जाम्पल दो बंडल ऑफ नोट्स है हमारे पास, करेंसी नोट्स, दो बंडल है, एक छोटा बंडल है, एक बड़ा बंडल है, कौन सा बंडल उठाओगे आप? सर बड़ा बंडल उठाएंगे। बेवकूफ हो आप, क्यों? बड़ा बंडल अगर उठाएंगे तो बड़े बंडल में क्या है कि 10-10 रुपए के नोट है, या 10-10 रुपए के नोट है, एंड ऐसे कितने नोट्स है? 100 नोट्स है, बड़ा बंडल है। लेकिन यहाँ पे 2000 के नोट्स है और 10 ही नोट है, तो ये 100 नोट होते हुए भी इसकी वैल्यू सिर्फ 1000 रुपए है और इसकी वैल्यू 20,000 रुपए, तो ऑब्वियसली ये बंडल उठाना चाहिए था। बट एनीवे, अगर दोनों को ऐड करना होगा तो करेंसी वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ नोट्स, करेंसी वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ नोट्स, तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल जो आंसर आएगा दोनों को ऐड करेंगे, दैट विल बी द टोटल वैल्यू ऑफ द मनी यू हैव। ओके, वैसे ही अगर टोटल वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना होगा तो यू नीड टू अंडरस्टैंड पहले तो व्हाट इज पार्शियल प्रेशर। व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? लाइक से फॉर एग्जांपल देयर इज अ बलून,
ये बलून में नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस है, इसके मॉलिक्यूल्स है अलग अलग, नाइट्रोजन हाइड्रोजन क्लोरीन के, दे ऑल आर पुशिंग द इनर वॉल्स ऑफ द बलून एंड कीपिंग द बलून डिस्टेंडेड। अब इंडिविजुअल नाइट्रोजन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, दैट इज पार्शियल प्रेशर। वैसे ही दो सॉल्वेंट्स एक दूसरे में मिक्स कर दिए, मिक्सिबल कर दिए, एक वाटर है एक एसीटोन है, वाटर और एसीटोन दोनों मिक्स करने के बाद में कितना टोटल वेपर प्रेशर होगा, ये डिपेंड करेगा वेपर प्रेशर, इंडिविजुअल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर प्लस इंडिविजुअल वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन। अच्छा, वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन बहुत ज्यादा है, लेकिन एक ही ड्रॉप ऐड किया रहेगा तो ज्यादा कुछ फर्क पड़ने नहीं वाला है। तो कितना एसीटोन ऐड किया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन। अब जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इंडिविजुअल हमको जो प्रेशर मिलेगा वो वाटर का एंड एसीटोन का, दोनों को ऐड करेंगे हमको टोटल वेपर प्रेशर मिल जाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एग्जांपल। अगर नहीं समझा है तो रॉल्स लॉ का जो डिटेल वीडियो जिसमें ग्राफ वगैरह पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है वो देखो, ये वाला वीडियो डेडिकेटेड फॉर फॉर्मूला ओनली है, इसके लिए बार बार बता रहा हूं, ठीक है। तो नाउ वी कैन डिराइव दिस एज वी नो कि x1 प्लस x2 याद है ना, x1 प्लस x2 मोल फ्रैक्शन में देखा था वॉज इक्वल टू 1। तो अगर x2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x2 इज इक्वल टू 1 माइनस x1। तो इधर मैं x1 लिख देता हूं प्लस पी नॉट टू x2 की जगह लिखता हूं 1 माइनस x1, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 माइनस x1। फिर इसको मल्टीप्लाई करते पी नॉट 1 x1 प्लस पी नॉट 2 इंटू 1 इज पी नॉट 2 माइनस पी नॉट 2 इंटू x1, राइट। फिर आगे क्या करना है, आगे ये P2 को इधर ले लो, राइट, P नॉट 2 को, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ द सेकंड सॉल्वेंट एसीटोन, प्लस P नॉट 2 प्लस P नॉट 1 x1 माइनस P नॉट 2 x1। तो अभी इसमें क्या आएगा, x1 कॉमन ले सकते हैं, सो P नॉट 2 एज इट इज प्लस P x1 मल्टीप्लाइड बाय P नॉट 1 माइनस P नॉट 2। So this is another way of expressing the Raoult's law. This is another way of expressing the Raoult's law, ठीक है। और इस रॉल्ट्स लॉ में भी आप देख रहे हो x2 अगर पता भी नहीं रहेगा, सिर्फ x1 से काम चला सकते हैं, सिर्फ x1 पता है तो भी हम लोग टोटल वेपर प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आ रहे हैं लास्ट RLVP पे, ओके, उसके न्यूमेरिकल्स और उसके फॉर्मूले पे। तो RLVP इज व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल LVP, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब P नॉट 1 ये वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट है, याद रखना ये वेपर प्रेशर किसका है, सॉल्वेंट का है, 1 इज फॉर सॉल्वेंट। देन P नॉट 2 या सिर्फ P नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, ओके। अब देखो आपका दिमाग चलता है, देखो P नॉट 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन P नॉट, मतलब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर देन सोल्यूशन। मीनिंग क्या है सर, मीनिंग ऐसा है कि से फॉर एग्जाम्पल एक एनक्लोज्ड वेसल है, इसमें वाटर है, वाटर गोज इनटू द गैसियस स्टेट, वेपर फेज में चला जाता है, वेपर फेज में जाने के बाद में मेरी बिल्ली मुझी को म्याऊं, मेरी बिल्ली मुझी को म्याऊं मतलब वाटर के ही वेपर मॉलिक्यूल्स वेपर स्टेट में जाके वाटर पे ही प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। इसके लिए वेपर प्रेशर को मैं याद रखता हूं, मेरी बिल्ली मुझी को म्याऊं। कोई और बाहर के पेट्रोल के मॉलिक्यूल्स है क्या, नहीं। कोई एयर के मॉलिक्यूल्स है क्या, नहीं। वाटर के ही मॉलिक्यूल्स गैसियस स्टेट में जाने के बाद वाटर पे ही प्रेशर एक्सर्ट करना, इसको हम लोग कहते हैं वेपर प्रेशर। तो ये वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक है, इनिशियली सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एज कंपेयर टू सोल्यूशन का। मतलब इसमें मैंने शुगर ऐड कर दिया, अब शुगर के मॉलिक्यूल्स ने वाटर के मॉलिक्यूल्स को पकड़ लिया, जब वाटर के मॉलिक्यूल्स को पकड़ लिया तो कम मॉलिक्यूल्स गैसियस स्टेट में गए, जब कम मॉलिक्यूल्स गैसियस स्टेट में गए तो क्या हुआ, कम वेपर प्रेशर एक्सर्ट किया, वेपर प्रेशर डिक्रीज्ड, वेपर प्रेशर कम हो गया। तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज ऑलवेज लेसर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, right? Vapor pressure of solvent is always greater than vapor pressure of solution. In other words, vapor pressure of solution is always lesser than vapor pressure of solvent. तो LVP relative lowering of vapor pressure कैसे फाइंड आउट करेंगे, इनिशियल वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर माइनस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर, इससे हमको क्या मिल जाएगा, LVP मिल जाएगा। LVP मतलब चेंज इन वेपर प्रेशर बोल सकते हैं। और लोअरिंग ऑफ वेपर, कितना लोअर हुआ भाई, वेपर प्रेशर कितना लोअर हुआ, डेल्टा P, चेंज इन वेपर प्रेशर कितना है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर P नॉट 1 माइनस P नॉट। लेकिन जब मैं RLVP कहता हूं, RLVP is relative lowering of vapor pressure. See, LVP is not a colligative property, लेकिन RLVP is a colligative property. तो RLVP में how we will मतलब अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे फॉर एग्जाम्पल डेंसिटी है, तो डेंसिटी ऑफ हनी
इज 1.8 ग्राम पर ml। मतलब 1 ml हनी की का वेट है 1.8 ग्राम, उसकी डेंसिटी 1.8 ग्राम पर ml। राइट, ये डेंसिटी हनी की, जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं। ओके, लेकिन अगर मैं आपको बोलता हूं कि रिलेटिव डेंसिटी फाइंड आउट करो, तो आप क्या करोगे? डेंसिटी ऑफ हनी ले लोगे विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ हनी को डेंसिटी ऑफ वाटर के साथ में डिवाइड करोगे, यूनिट कैंसिल हो जाएंगे और आंसर सेम ही रहेगा, बट it's a unitless quantity, and this will now be called as relative density because it's in relation with density of water. वैसे ही atomic mass और relative atomic mass, atomic mass of sodium is 23, but relative atomic mass is the atomic mass of sodium divided by 112, divided by some standard. What is that standard? 112 the mass of carbon atom. 12 and 12 cancel, divided by 1 is 20. Answer remains the same, but now it is relative atomic mass in relation to atomic mass of a standard substance, that is carbon. 112 the mass of carbon atom. वैसे ही standard relation with the standard, that is water, density of water, density of the substance divided by density of water, relative density. वैसे ही relative lowering of vapor pressure is the difference in vapor pressure P naught 1 minus P naught divided by the initial relative, मतलब यहाँ पे क्या है, in relation to initial vapor pressure कितना था, मतलब solvent का vapor pressure कितना था, तो ये solvent का vapor pressure, so RLVP is equal to P naught 1 minus P naught upon P naught 1. Okay, this is RLVP. And now according to Raoult's law, this change, relative lowering of vapor pressure can also be equal to chi2, matlab mole fraction of the solute. Okay, so when I equate this, I can write P naught 1 minus P naught upon P naught is equal to, क्या था x2 का फॉर्मूला, n2 upon n2 plus n1। ठीक है, और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना अभी, वी कैन, इट्स लाइक बीटिंग अराउंड द बुश, पी नॉट 1 माइनस पी नॉट अपॉन पी नॉट 1, हाँ, पी नॉट 1 डिवाइडेड बाय पी नॉट 1, सब जगह पी नॉट 1 लिखा है ना, डिवाइडेड बाय पी नॉट 1, ऊपर भी कहा गया वो, हाँ, डिवाइडेड बाय पी नॉट 1। ओके ओके, सो यहाँ पे पी नॉट 1 माइनस पी नॉट डिवाइडेड बाय पी नॉट 1 इज इक्वल टू एन टू, एन टू क्या है, W2 अपॉन M2 डिवाइडेड बाय W2 अपॉन M2 प्लस W1 अपॉन M1। थोड़ी देर पहले बताया था कि इसको इग्नोर कर सकते हैं, अगर ये बहुत ही छोटा वैल्यू है तो, ये अगर बहुत ही छोटा वैल्यू है तो इसको इग्नोर कर सकते हैं, तो देन योर आंसर विल बी W2 अपॉन M2 इंटू M1 अपॉन W1। ओके, सो योर फाइनल मतलब RLVP is equal to P naught 1 minus P naught upon P naught 1 equal to W2 upon M2 into M1 upon W1, which is also equal to X2। तो ये फॉर्मूली सारे डेरिवेशन यहाँ पे हो गए, बस एक ही बाकी है, दैट इज वैंट ऑफ। वैंट ऑफ में करेक्शन फैक्टर I, तो और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, वो एक छोटा सा ले लेता हूँ, देन वी कैन, मतलब तुम बोलोगे सर कितने सारे फॉर्मूले आ रहे हैं, अभी है तो क्या करें अभी, राइट, ये सब फॉर्मूले आपको आराम से लर्न हो जाएंगे जब जितने न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस, कोई भी न्यूमेरिकल के फॉर्मूले ना लर्न नहीं करना है, इतने न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं कि वो फॉर्मूले अपने आप लर्न हो जाए। तुमको क्या लगता है मैंने ये बैठ के रट्टा मारा है, राइट, ये सेशन रिकॉर्ड करने के पहले रट्टा नहीं मारा है, इतने न्यूमेरिकल सॉल्व किए कि ये फॉर्मूले अपने आप याद हो गए, राइट। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दैट इज1 minus I upon 1 minus n। अच्छा, what is I? I is the Bandt factor, correction factor, and n is the theoretical I। theoretical I मतलब theoretical correction factor। वो सब क्या है, न्यूमेरिकल जब करेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। सिर्फ I की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो I is observed colligative properties, right, observed colligative properties अपॉन theoretical colligative properties, यानी कि observed elevation of boiling point या observed molar mass अपॉन theoretical molar mass या observed elevation of boiling point अपॉन theoretical elevation of boiling point। तो theoretical colligative properties में लिख देता हूँ, वो I है। फिर भी अगर समझ में नहीं आया, I की वैल्यू टेंशन नहीं लेना, जब न्यूमेरिकल करेंगे फटाफट खटाखट समझ में आ जाएगा what is I। ओके, और अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन परसेंटेज में फाइंड आउट करना है, लास्ट थिंग, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो अगर परसेंटेज में फाइंड आउट करना है, अगर परसेंटेज में फाइंड आउट नहीं करना है तो यू कैन कीप इट विद अल्फा। ओके,
सो ऑल दीज आर फॉर्मूली। अभी इमीडिएटली नेक्स्ट सेशन में हम लोग इन सब फॉर्मूली को आपको पढ़ना है, साइड में लिख के रखना है, जब भी कुछ फॉर्मूला लगे तो यूज करना है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि रटना है, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, फॉर्मूला यूज करोगे, जैसे जैसे यूज करते जाओगे वैसे वैसे याद होता जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूली एक पेज पर लिख के रखो, रेडी रखो नेक्स्ट सेशन के लिए, जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे।